नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय। तो डोसा हट, अब मल्टी क्यूजीन प्योर वेज रेस्टोरेंट लेकर आ गया है 100 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट, अब आसनसोल में। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट पायल मल्टी प्लाजा का पायल वन सेंटर और पायल फ्रेश सुपरमार्ट अब खुला हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्ड नंबर 20 कचड़ापाड़ा निवासियों ने आज आसनसोल नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज कराई। अस्तिक बावड़ी ने कहा कि अमित बावड़ी नामक एक 20 वर्षीय युवक की बिजली की तार के चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुआवजे की मांग पर स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। কত বয়স হবে? আমরা চাই যেমন আমাদের ভাই যেমন ভালো সুস্থ হয়ে আসে, কেন কি আমরা অত আমরা টাকা পয়সা আমাদের কাছে নাই। আমরা যেমন চাই যে আমাদেরকে ইলেকট্রিকওয়ালারা কোনো সাহায্য করে আমাদের যেমন ভাইকে আমরা ভালো সুস্থ মন ফেরত পাই। যেমন আজকে আমরা এসেছি গতকালকে বিকেল 4:30 নাগাদ 20 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কচড়াপাড়া গ্রাম সংলগ্নতে একটা মাঠে একটা ছেলে অমিত বাউরি নাম গরু টরু চড়াতে গেছিল। হঠাৎ যে 33,000 ভোল্টের ইলেকট্রিক তার কোনোখানে পড়েছিল, সেই পড়ে যাওয়া তারে তার পা ফেসে যায়। সেই পা ফেসে যাওয়াতে তার শারীরিক খুবই মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং সর্বপ্রথম আমরা ওই পাড়াবাসী এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের তৎপরতায় আমরা আমাদের আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে নিয়ে যাই। সেখানের চিকিৎসক বলে যে এনার দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, এখানে সেটা ঠিক হবে না, আপনারা অন্যত্র ব্যবস্থা করুন। ইতিমধ্যেই আমরা পাড়াবাসী এবং বর্তমান প্রশাসনের তৎপরতায় দুর্গাপুর হেলথ ওয়ার্ডে অমিত বাউরিকে ভর্তি করেছি এবং ওনার যে মর্মাহত জীবন সেটা কিন্তু খুবই সংকটজনক দেখা গেছে এই মুহূর্তে। আমার নাম আস্তিক বাউরি, পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ উন্নয়ন সমিতির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আজকে থানাতে আমরা বহুবার মৌখিকভাবে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কর্ণধারদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, ওনারা বারবার আমাদেরকে এড়িয়ে গেছে। আজকে বাধ্য হয়ে আমরা প্রশাসনিক তৎপরতায় একটা মাস পিটিশন আমরা পাড়াবাসীর পক্ষ থেকে করলাম। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ব্যানারের 2 নম্বর ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দেওয়া হল। দেওয়াল আমাদের বুক করা দেওয়াল, লিখিত পারমিশন নেওয়া, সেই দেওয়াল চুন করে লিখে দিচ্ছে। আমাদের কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস লিখে, যেমন গতকালই কলকলিপাড়ায় আমাদের দেওয়াল যেটা আছে দুলাল বাউরি যে দেওয়াল আমাদের লিখিত পারমিশন আছে, দেওয়ালে সেখানে মুছে আমরা লিখে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদের দেওয়াল লেখা আছে, সে লেখা দেখছি মুছে পরে বিজেপি চুন মেরে মুছে দিচ্ছে। কলকলিপাড়ায় ব্যানার টাঙানো আছে, সেই ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমাদের চুন করা দেওয়াল, সেই দেওয়ালেকে তৃণমূল কংগ্রেস লিখে দিচ্ছে। এই তো পেছনে বাস্কেট পাড়া, এখানে আমাদের দেওয়াল আমরা লেখা ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আছে তারা ভয় দেখে, বাড়ির মানুষকে ভয় দেখে সেই দেওয়াল জোর করে মুছে দিচ্ছে। বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলছে, নেতা যারা আছে ওদের তো সবাই নেতা, ওরা নেতা বলছে যদি দেওয়াল না লিখতে না দাও তাহলে লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবো। এটা হয় কখনো? এই হুমকি দিচ্ছে। আপনারা দেখবেন দেওয়ালে লেখা আছে যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার চালু রাখতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে। এটা ব্ল্যাকমেলিং করছে সাধারণ মানুষের সাথে, যে তুমি ভোট দেবে তবে তুমি লক্ষ্মী ভাণ্ডার পাবে। আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস তার বাবার ঘর থেকে দেয়? বাবার ঘর থেকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা দেয় কি? লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা তো আমার আপনার যারা ট্যাক্সের টাকা থেকে সরকার দিচ্ছে। সরকারি প্রকল্প কখনো রাজনীতি দল বন্ধ করতে পারে? মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আর এই নিদর্শন আজকে তো করে মানে মূল রাস্তার ওপর ব্যানারটা আমরা ছিঁড়ে দিলাম। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, পুলিশ আসছে, এর আগেও কমপ্লেন করেছি, ভাই নেমে কমপ্লেন দিয়েছি। পুলিশ চুপচাপ, পুলিশ মূলত তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে। কি মনে করছেন, এটা কি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল? একদম বিশেষ রাজনীতি। এখন দেখুন আমরা সিপিআইএম করে লাল ঝান্ডা করি, আমরা তো না দেখলে কারোর কথা বলতে পারবো না।
আমরা এটা দেখিনি যে কে ছেড়েছে, কিন্তু তৃণমূল আর বিজেপি যারা আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছে, যারা চায় না যে গরিব মেহনতি মানুষের ক্ষমতা আবার ফিরে আসুক, তারাই এটা করছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে একটা চোরের দল, আর বিজেপি হচ্ছে দালাল। সবচেয়ে বড় ডাকাত যদি বলেন সেটা হচ্ছে বিজেপি। ইলেকট্রন বন্ডের টাকা বিজেপি যেমন খেয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসও খেয়েছে। চোরদেরই কাজ। চোররা তো কখনো চাইবে না যে মানুষ, ভালো মানুষজন যারা আছে তারা জিতে আসুক। সেটা কি রাতের অন্ধকারে করা হয়েছে? রাতের অন্ধকারে এটা ছেড়ে দেওয়া আছে। আমরা পুলিশকে যেটা বলেছি যে এই শেষবারের মতন বললাম, যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আমরা কারোকে জানাবো না। রাজবাড়ি ওটা রাস্তাটা আছে, রাস্তাটা অবরোধ করে রেখে দেবো, একদম অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ করে দেবো। শেষবারের মতন বলে আর বলবো না। পুলিশ আপনারা লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ দিয়েছে? লিখিত অভিযোগ তো দিয়েছি, এর আগে তো দিয়েছি লিখিত অভিযোগ, পুলিশ কিছুই করে নাই। লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে, আমাদের কাছে রিসিভ কপি আছে। দেওয়ালের যে মালিকানা তার অনুমতিপত্র যেটা, সেই অনুমতিপত্র আপনার জেরক্স দিয়ে কমপ্লেন করেছি চুপচাপ। যেমন কি উল্টো আরও দেওয়াল দেখছি মুছে দিয়েছে, তা আমাদের মনে হচ্ছে পুলিশও করেছে এটা। যে দেওয়ালগুলোর বিরুদ্ধে আমরা লিখিত দিয়ে আসছি, এই দেওয়ালগুলো আমাদের, পোস্টার ছেড়ে দিচ্ছে, দেওয়াল মুছে দিচ্ছে, দেখছি তারপর আবার ওরা বলতে হবে এটা তৃণমূল কংগ্রেস লিখছে, বিজেপি আমরা মুছে দিচ্ছে। এই তো ঘটনা। সিআরসোলে ইতিমধ্যে প্রায় 10 থেকে 15টা দেওয়াল যেগুলো আমাদের চুন করে, সেই দেওয়াল তৃণমূল কংগ্রেস লিখে দিয়েছে। জানেন আপনারা? আপনাদের চুন করে দেওয়াল? আমাদের চুন করে দেওয়াল লিখে দিচ্ছে। এটা চাইছে কি অ্যাকচুয়ালি? তাহলে কি আমরা কি মানে ভোট, মানে গণতন্ত্রের অধিকার, মানুষকে তা থেকে মানে অংশগ্রহণ করবে না, এটা কি চাইছে নাকি? নির্বাচন কমিশন ছোট জগন্নাথ, নির্বাচন কমিশনের আমাদের দায়িত্ব নেই? মূল রাস্তার ওপর ব্যানার, সেই ব্যানার আমরা ছিটে দিয়ে চলে যাচ্ছে, কোনো গলির ভেতরে নয়। আপনার পরিচয় দেবেন? আমার নাম সঞ্জয় প্রামাণিক। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहाँ ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आप स्टॉक मार्केट में रखते हैं दिलचस्पी और चाहते हैं मुनाफा कमाना, तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आया है 10 दिनों का ट्रेडिंग कोर्स। एडमिशन गोइंग ऑन।
तो आज ही संपर्क करें गोदली रोड आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9631911369 पर। टारगेट एरिया सेट था, अभी सेट है। कितना का प्रॉफिट चल रहा है? 40 50 40 50। आपका कितना का चल रहा है सर? ये सर भी ट्रेडर है। 14 12 इनका चल रहा है 13 26 चले 26 था, अभी 17 चल रहा है। चलो 20 17 इनका प्रॉफिट कितना चल रहा है? मिली जी का प्रॉफिट। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। खास ईद के मौके पे पायल मल्टी प्लाजा का पायल वन सेंटर और पायल फ्रेश सुपरमार्ट अब खुला रहेगा रात 12 बजे तक अगले एक हफ्ते। सभी कुछ अवेलेबल है एक्सेसिव डिस्काउंट्स के साथ, अप टू 65% डिस्काउंट ऑन MRP। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर पाए 35% तक की छूट, बाय वन गेट वन ऑफर। तो जल्दी करें, आज ही आए पायल मल्टी प्लाजा। अगर मेरी तरह आप भी है डोसा लवर और ट्राई करना चाहते हैं डोसा के डिफरेंट वैरायटीज, तो डोसा हट अब मल्टी क्यूजीन प्योर वेज रेस्टोरेंट लेकर आ गया है 100 से भी ज्यादा वैरायटी की डोसास। रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलेगा गुड फूड, गुड टेस्ट और गुड मूड। डोसास के अलावा डोसा हाट में अवेलेबल है अदर साउथ इंडियन डिशेस, इंडो चाइनीज, तंदूर आइटम्स, बिवरेजेस एंड मच मोर। तो आज ही आइए डोसा हाट। हमारा एड्रेस है लोअर चेरीडांगा, आसनसोल। इसके अलावा शक्तिगढ़, बर्दवान में भी डोसा हाट अवेलेबल है। अतिरिक्त जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मैं पौलाजिया की निवासी हूँ। एक्चुअली मेरा मेन पेशा मेरा MRS स्कूल में चलाती हूँ, मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरा एक ज़मीन है सितला बाइदोकर पाड़ा के पास में, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप के लिए हमने सैंक्शन करवाया था, हमारा पेट्रोल पंप बनने वाला है। उसमें ढेर सारे NOCs हमको मिल चुके हैं। उससे लगवा कुछ ज़मीन है जो एग्रीमेंट के थ्रू हम लेने वाले थे और उसके ऊपर में कोर्ट केस चल रहा है, इंजंक्शन भी होके पड़ा हुआ है। सामने की जो ज़मीन है, जो मेरा एंट्रांस है, वहाँ पे पीछे में, उसके ठीक पीछे में तनवीर हक बोल के एक आदमी का ज़मीन है, जो पहले मेरे साथ एग्रीमेंट में इंटर करता है। एग्रीमेंट में इंटर करने के बाद उनके साथ हमारी 2.5 करोड़ पे बात तय होती है। 1 करोड़ देने के बाद में, 1 करोड़ से कुछ कम पैसा देने के बाद में वो हठात उनको कोई बेटर चॉइस मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमें बोलते हैं कि हम आपको अब ये ज़मीन नहीं बेचेंगे। जब वो बोलते हैं नहीं बेचेंगे, तो इन द मीन टाइम हम लोग उनको बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं समझते। तो हम लोग कोर्ट में केस करते हैं। कोर्ट में उनके ज़मीन पे परमानेंट इंजंक्शन हो जाता है। इवन अब ऑर्डर होने वाला है कि या तो कोर्ट से वो रजिस्टर होगा या फिर वो मतलब फाइनल ऑर्डर के तरफ में केस जा चुकी है। उसके सामने की जो ज़मीन है मेरी, उनके ज़मीन के सामने की जो ज़मीन है, उसके बगल में हमारा पेट्रोल पंप बन रहा है और सामने की ज़मीन भी हमारी है। जब से उनको ये पता चला है, वो इंटेंशनली वहाँ पे बार बार वहाँ के कुछ लोकल 4-5 लोगों को लेकर एक मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर मतलब एक हम लोगों ने बाउंड्री बनाने के लिए सीमेंट सानने के एक बेदी टाइप का बनाया, तो वहाँ पे उन्होंने झंडा गाड़ दिया, कीर्तन शुरू करवा दिया, खर्चा उर्चा दे के वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को उस्काया कि अगर ये ज़मीन आप लोग दखल कर लोगे, जो लोग कुछ भी नहीं समझते उनको पैसा दे के ये ज़मीन अगर आप दखल कर लेंगे, पार्क बनाएंगे, आपके लिए सुविधा होगा, आपके बच्चे खेल पाएंगे,
पर्सनल जमीन, रिकॉर्डेड प्रॉपर्टी को उन्होंने फिर बीएलआर में भी केस किया, नहीं ये इनकी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ये हम लोग जमीन, आप बीएलआर में भी जाएंगे वहां पे भी देखेंगे कि हमारा वहां पे केस चल रहा है और वो भी हमारे पास में उनके भी नो ऑब्जेक्शन के सारे सर्टिफिकेट्स एडीडीए के दूसरे जो भी मेरे पास हैं जमीन के। इसके अलावा उस जमीन में ये आपको मैं कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ जो कि ओरिजिनल है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, ये हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, कमिश्नर को डायरेक्ट किया गया था कि वो जमीन डायरेक्ट, वो जब भी हम लोग बाउंड्री करें तो पुलिस जो है हमें मदद करेगी। ये पेट्रोल पंप करेंगे हम लोग, वहां पेट्रोल पंप करने में जैसे कोई बाधा ना हो, वहां पे जब भी हम बाउंड्री करें तो कोई बाधा ना हो। वो आदमी हर किसी को एक ऑर्डर कॉपी दिखा रहा है कि ये जमीन इनकी रिकॉर्ड नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये बीएलआरओ और अथॉरिटी का मैटर है, वो समझेंगे कि जमीन रिकॉर्ड होगी कि नहीं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है वो बीएलआरओ में जाके ऑब्जेक्शन कर सकता है। दूसरा देखिए, ये वहां उस प्रॉपर्टी पे जिसपे वो लोग मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जम के काम चल रहा है, जम के काम कर रहे हैं वो लोग, जबरदस्ती मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने से वहां प्राण नाश की उनकी दे रहे हैं। ये ऑर्डर कॉपी है, ये ऑर्डर कॉपी एकदम ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी है कोर्ट का, जिसमें लिखा हुआ इंजंक्शन है उस जमीन पे। वो जमीन पे कोई भी मतलब मेरे अगेंस्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो हम लजीज लब्बायक डेवलपर्स के जो मालिक हैं तनवीर हक, उनके ऊपर में कोर्ट से परमानेंट इंजंक्शन है, टेम्पररी नहीं, परमानेंट इंजंक्शन है। वो मेरी जमीन में तो क्या, अपनी जमीन में भी नहीं घुस सकते और किसी को दे नहीं सकते, ना ही बेच सकते हैं, ना किसी को रेंट पे दे सकते हैं। अब चूंकि ये चीज उनके ऊपर हो चुकी है, वो कंटिन्यूअसली मेरे जमीन को डिस्प्यूटेड घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वहां बेदी बना के झंडा गाड़ा, हम लोगों ने 5 बार पुलिस पे कंप्लेन किया, पुलिस ने जाके वो काम रोक दिया। रात रात में, अंधेरी रातों में वो काम करा रहे हैं और काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। परसों घर की घटना है, हठात एक बड़ा सा हनुमान मूर्ति लाके उन्होंने वहां पे रख दिया, रखने के बाद उसको तोड़ा, उसके हाथ तोड़े, उसके पैर तोड़े। सुबह में सीन क्रिएट किया, पुलिस को बुलाया गया, हमारे और मेरे हस्बैंड के नाम पे कंप्लेन किया गया कि उस मूर्ति को हमने तोड़ा। हम हिंदू हैं, हम हनुमान जी की मूर्ति को नहीं तोड़ सकते, ये इम्पॉसिबल मैटर है हमारे लिए, हम लोग तोड़ने की सोच भी नहीं सकते। उन्होंने तोड़ा, तोड़ने के बाद में वो पूरा मामला हमारे ऊपर चढ़ा दिया कि हम लोग उस जमीन पे, मेरा जमीन है, हम 50 बार कोर्ट जा रहे हैं, अभी कोर्ट बंद है। इलेक्शन के टाइम में ये ज्यादातर ये बदमाशियां करते हैं क्योंकि उस टाइम में कोर्ट बंद है। जैसे अभी जिस चीज का वो फायदा उठा रहा है वो ये है कि ना तो सिविल कोर्ट ओपन है, ना ही आपका क्रिमिनल कोर्ट ओपन है, सारे वकील धरने पे हैं और मुझे प्रोटेक्शन देने वाला अभी इस वक्त कोर्ट बंद है और हम जा नहीं पा रहे बार बार कोर्ट, या 144 करना या कोई नए से कोई केस करना या किसी को रोकने के लिए अगर हम कोर्ट का सहारा ले, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। इसका फायदा उठा के उन्होंने परसों हनुमान की मूर्ति बैठाई, उसको पीस तोड़ा, तोड़ने के बाद में सुबह में हमारे नाम पे कंप्लेन करवाई। कंप्लेन कराने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो रात में उसमें आग लगाने वाले थे। जैसे हमें वहीं पाड़ा से इंफॉर्मेशन मिला, हमने इमीडिएटली हमारे जो कन्यापुर फाड़ी के आईसी हैं, उनको एएसआई हैं, उनको हमने फोन किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग मोबाइल वैन, तो पुलिस ने वहां वैन जाके पुलिस सब कुछ रोकी। रोकने के बाद आज सुबह से वहां पे मट्टी कोड़ रहे हैं, जबरदस्ती वहां पे अगर कोई जाए तो वो लोग भाग जा रहे हैं, फिर छिपके वहां पे बाउंड्री कर रहे हैं, रास्ता कर रहे हैं, वहां पे दीवार करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तनवीर हक का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, ये अपनी जमीन तो इनकी खुद की जा चुकी है, अब वो भी हमारे नाम पे रजिस्टर होने वाली है और उनको चूंकि बेटर चॉइस मिल चुका है और उनका घुसने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो मेरी जमीन को जानबूझ के डिस्प्यूटेड क्रिएट करके अपना रास्ता निकाल रहा है ताकि वो किसी और को बेच के भाग सके। और ये जानबूझ के वो 3-4 लोगों को पैसा खिला के ऐसा काम कर रहे हैं। वो वहां पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जैसे राइट हो जाए, हनुमान की मंदिर का मूर्ति तोड़ा जा रहा है किसी की भी जमीन में। अगर वो जमीन वेस्टेड भी हो तो वो सरकार से बिना परमिशन के मंदिर नहीं बनती, कहीं पे भी आप मूर्ति लगा दें, कोई भी आप पिलर गाड़ दें, ऐसा नहीं होता है। अगर वेस्टेड भी है तो सरकार से आपकी परमिशन होती है। हमने चिट्ठी की है कमिश्नर को, कल ये खबर जैसे हमें पता चली कि ऐसा एक मूर्ति तोड़ा गया है, बेदी के ऊपर रखा गया था, उसको तोड़ा गया है, तो हमें पहले तो पूरा मैटर मालूम नहीं था, वो हमें शाम में पता चला, पर पहले उसके पहले हमने यहाँ पे जाके कंप्लेंट किया था कमिश्नर बिल्डिंग पे। ये उसका रिसीविंग है और इसमें हमने कॉपी टू मेयर साहब को भी किया है, मंत्री जी को भी हम लोग बताने वाले हैं। मंत्री जी थे नहीं, इसीलिए हम लोग आज उनके मिलके उनको भी ये पूरा मैटर बताएंगे। और यहाँ 3 इंजंक्शन ऑर्डर्स जो कि हम आप लोगों को दिखा चुके, ये रहने के बावजूद तनवीर हक अपने पैसे के दम पर, चूंकि वो एक प्रमोटर हैं, बहुत पावरफुल, बहुत पैसे वाले हैं, अगर उनको लगता है कि सामने की जमीन वेस्टेड भी है
या कुछ भी है, किसके नाम पे रिकॉर्ड है, वो कोर्ट में जाएं, मेरे नाम पे खिलाफ एफआईआर कराएं, वारंट निकालें, बीएलआरओ से मिले। मेरी जमीन, हम बार बार कोर्ट जा रहे हैं, बार बार हम आइन मान रहे हैं, हम लीगल तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार हमको इलीगली फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपना इंटेंशन साधने के लिए। वो गरीब। आज के लिए बस इतना ही। आसनसोल और उसके आसपास से जुड़े सबसे सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल खबर आसनसोल को। तब तक के लिए नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।